ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਲੀਨ। ਸਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਯੈਟ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਫੁਲਫਿਲਡ। ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਟਸ ਐਨ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਐਫ ਆਈ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਪ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਸੋਚੋ, 26,000, 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ 26,000 ਜੌਬਸ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੌਬਸ ਦੇ ਦੇਗੀ? ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਡਲਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਫਲੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵੀ ਆ ਰਫਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਟਲੀਸਟ 50%। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਫਲੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੈਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਟੀਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੋਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਨਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲ ਮਿਲ ਪਾਵੇ, ਬੈਸਟ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲ ਮਿਲ ਪਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਪਟ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨੀਡ ਲੋਟ ਮੋਰ ਜੌਬਸ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਰੇ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮੂਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਨਾਸਾ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸਰੋ ਨੇ ਰਾਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪਲਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਊਲ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾਓ ਜੀ ਬੈਸਟ ਰਾਕਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਵਿਦ ਅ ਗੁੱਡ ਰਾਕਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੀਡ ਐਕਸਪਰਟਸ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਐਫ ਆਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਫ ਆਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬਜਟ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ ਬਾਈ ਐਕਸਪਰਟਸ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮਨੀ ਆਫ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਐਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੇਸਟਫੁਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਟਸ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਡਿਕੂਲਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਮੂਵ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਨਾ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਚਲੋ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ।
ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚੱलते हैं नेशनल अपडेट्स ਜਿਹੜਾ बेनामी लॉ के रेट्रो प्रभाव पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतज़ार सो ये बेनामी लॉ क्या है सर व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट बेसिकली जैसे कि काफ़ी जनता हमारी जानती है कि जो करप्ट ऑफिशियल्स पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी जिन्होंने टैक्स नहीं पे किए हैं वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ले लेते हैं। ओनरशिप उन्हीं के पास होती है। ऐसे ही किसी अनपढ़ आदमी से, किसी गरीब आदमी से, या जो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके नकली आधार कार्ड बना के उनके नाम पे प्रॉपर्टी बना ली जाती है, खरीद ली जाती है। अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बना दी गई हैं। अब उसको इम्प्लीमेंट आज से करना है या पुरानी डेट से करना, ये क्वेश्चन है। देखो, अगर करप्शन खत्म करनी है तो इसको पिछली डेट से करना पड़ेगा। पुरानी करप्शन को आप उजागर कैसे करोगे? जब आप आइडेंटिफाई करोगे, और उन पे इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस हैं, इसीलिए जो करप्ट लोग हैं डरे भी पड़े हैं। एक तो वो प्रॉपर्टी सारी की सारी गवर्नमेंट ले लेगी, दूसरा उसके ऊपर 25% फाइन पड़ेगा, तीसरा जो एक्चुअल ओनर है और जो ऑफिशियल ओनर है दोनों जेल भी जा सकते हैं। तो ये इसमें डिपेंडिंग ऑन दी ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ द कोर्ट क्या देखते हैं। तो ये एक बड़ा, इससे ना बहुत चीज़ें अनलॉक होने वाली हैं। हमारे देश में एक मिडिल क्लास आदमी सारी ज़िंदगी एक अपना घर बनाने के लिए तरसता रहता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो करप्शन का पैसा उसमें जाता है वो प्रॉपर्टियों के प्राइस को बढ़ा देता है। क्योंकि करप्शन का पैसा है, हार्ड अर्न मनी नहीं है, तो लोग अपने पैसे को कैश में नहीं रख सकते, तो प्रॉपर्टी एक वे बन जाती है उस पैसे को डिप्लॉय करने की, लॉन्ग टर्म डिप्लॉय करने की। फिर लिक्विडिटी खत्म होती है और आम आदमी के लिए प्रॉपर्टीज़ महंगी हो जाती हैं जितनी वो महंगी होनी नहीं चाहिए। जब ये चीज़ें अनलॉक होंगी, जब ये रेट्रोस्पेक्टिव में लगेगा, अपने आप करप्ट लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी लिक्विडेट करना चाहेंगे। जब वो लिक्विडेट करना चाहेंगे, प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस अपने आप कम होंगे। आई एम अ हाउस ओनर बट आई स्टिल वांट, मेरे को ये लगता है कि अगर मेरे घर का भी या कोई भी प्रॉपर्टी प्राइस कम होते हैं तो ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, हर कोई अपना घर ले पाएगा जी। तो नेशनल इंटरेस्ट में यही है कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, अगर उसका मल्टीप्लायर देखूं, एक आज घर का जो प्राइस है, इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। उसके बाद जब ये ब्लैक के पैसे लगते हैं तो जो हमें ट्रू एक्साइज ड्यूटी मिलनी चाहिए या रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी मिलनी चाहिए वो पूरी मिलती नहीं, उसमें भी करप्शन होती है। तो जब करप्शन होती है वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर और वो सिस्टम को वीक करती है। करप्शन इज नॉट हेल्दी फॉर द नेशन इन एनी वे, चाहे वो ड्रग सप्लाई तक पहुंच जाए, वो और इलीगल एक्टिविटीज में पहुंच जाए, करप्शन कहीं से भी शुरू हो जाए। उसके बाद जो हमारे सरकारी अफसर होते हैं ना, दे आर एट द मर्सी ऑफ दोज पीपल हु आर करप्ट, जिन्होंने करप्शन उनसे करवा रहे हैं, जो शुरू किया, वो फिर एक के बाद एक वो इलीगल एक्टिविटीज़ का लेवल बढ़ता रहता है और वो सोसाइटी को और देश को डिग्रेड करती है। तो मेरे को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे हार्श स्टैंस लेना चाहिए। जिन लोगों ने भी बेनामी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, इंश्योर करना चाहिए कि वो पकड़े जाएं, और इससे एक मेजर लेवल ऑफ करप्शन दूर होगा। और स्पेशली जो पॉलिटिक्स में करप्शन है, पॉलिटिशियंस के पास देखो ओपन सीक्रेट है, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, एंडलेस ज़मीनें पड़ी हुई हैं और वो उनके नाम पे नहीं है। लोगों के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, पर हमारा लॉ क्या कहता है, एक बंदे के पास 18 एकड़ हो सकती है जी। तो बाकी की ज़मीन किसी और के नाम पे होगी। तो उनके नौकरों चाकरों को नहीं पता है कि वो अरबपति हैं, कि उनके पास अरबों की ज़मीन पड़ी है। ये भी कई जगह पे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अगर बाहर आएंगी, ठीक है, तो मेरे को लगता है कि इससे करप्शन में और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में भी होगा। उनका पैसा जब सरकार के पास, जब वो जो प्रॉपर्टी जाएगी वो देश की तरक्की में यूज़ हो पाएगी। तो मेरे को लगता है कि अगर अब हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट कितनी हिम्मत दिखाते हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट ऑल द पॉलिटिशियंस विल लूज समथिंग। अब इसमें वो कितना सेंट्रल गवर्नमेंट या कितना चाहती है देश में बदलाव, वो इससे पता चलेगा। उनकी जो विल पावर है, हम अप्रिशिएट करते हैं उन्होंने जो ग्लोबल लेवल पे या जो भी प्रोसेस और पॉलिसीज़ बना रहे हैं, पर अगर ट्रूली करप्शन को ख़त्म करना है तो ये एक सबसे बड़ा नेल होगा करप्शन के कॉफिन में, कि आप उनकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ पकड़ो, और इससे उनकी ट्रू विल पावर कितनी है करप्शन के अगेंस्ट, कितना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो भी बाहर आएगा। सो लेट्स वेट, ये एक बहुत मेजर चीज़ होने वाली है जिस पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर आखिरी सवाल, इन अ सडन मूव आरबीआई रेज्ड पॉलिसी रेपो रेट टू कर्ब इन्फ्लेशन, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेम? बेसिकली अब आजकल जो अनसर्टेनिटी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में बनी हुई है रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, और भी जो सर्टन क्लाइमेटिक अनसर्टेनिटीज आ गई हैं, इस बार आपने देखा इंडिया में वीट की फसल कम हुई, 6% कम हुई हीट के कारण।
अब प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है, हम इस पे ब्लाइंड आई करके बैठे हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। हम ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, कल को हमारे सारा का सारा ज़मीन की प्रोडक्टिविटी बहुत बहुत अलार्मिंग रेट पे डाउन जा सकती है। पंजाब ने मेजर कंट्रीब्यूशन की है, पर पंजाब को भी सोचने की ज़रूरत है कि हमें भी अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर लें। और कमोडिटी प्राइसेस के कारण ये जो ओवरऑल फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन आ रही है अनसर्टेनिटी के कारण, और इससे क्या हो रहा है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एक इंडिया का टारगेट है 4% प्लस माइनस 1-2% की वेरिएशन के बीच में हमने उसको टारगेट करके रखना होता है, होल प्राइस इंडेक्स जो हमारी फूड इन्फ्लेशन है। उसके अलावा क्या हो रहा है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट क्वालिटी डाउन जाती है, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कम हो जाते हैं लोगों के। तो अब जब इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाते हो, सेविंग्स कम हो जाती हैं। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो सेविंग्स बढ़ेंगी, मनी सप्लाई मार्केट में कम होगी। जब मनी सप्लाई कम होगी तो लोग कम पैसे उन चीज़ों पे खर्च करेंगे। जब पैसे कम खर्च करेंगे, अपने आप उनके रेट कम आने शुरू होंगे। तो ये एक टिपिकल इकोनॉमिक फंडामेंटल वे है टू काउंटर इन्फ्लेशन। और इससे पता चलता है कि इन्फ्लेशन कितनी क्रिटिकल स्टेज, मतलब उसको क्रिटिकल स्टेज पे आने से रोकना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है उसमें हमारा कंट्रोल कम है। वो इन्फ्लेशन का रीज़न हमारा इंडिया की सिचुएशन नहीं है, ग्लोबल सिचुएशन है, और हम ग्लोबल मार्केट से जुड़े हैं। तो आरबीआई ने प्रोएक्टिव होके आउट ऑफ द साइकिल, वरना तो क्वार्टर एंड में हर बार वो अपने रेपो रेट वगैरह डिफाइन करते हैं, बट टू मैनेज, प्रीएम्प्टिवली मैनेज करना, ये मैं आरबीआई को अप्रिशिएट करूंगा कि वो प्रोएक्टिवली लगे हुए हैं। इससे पहले कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ हैंड जाए, उससे और स्ट्रेस आते हैं मार्केट में, लोगों के इन्वेस्टमेंट पे, सेविंग्स पे बहुत तरह के स्ट्रेस आते हैं। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, इससे आपके ईएमआई रेट बढ़ेंगे। फ़ायदे ये हैं कि आपके जो एफडीज़ हैं उनके आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो बट हर जो एक्शन लिया जाता है उसके कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं। सो अल्टीमेटली इट विल, आरबीआई का ये मानना है कि अगर हम ये रिपो रेट बढ़ा रहे हैं या इसको हमने चेंज किया है तो ये हमारी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, विच इज़ मोर लाइकली टू हैपन, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। और अब इंडिया को अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक और तरीका होता है, वो इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। आज हम अपने जो प्रोडक्शन वेज हैं, हमारी जो अपने एम्प्लॉयज़ की या जो हमारी लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अपनी टेक्नोलॉजी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, तो अपने आप उससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। अल्टीमेटली अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जिन जिन देशों ने फ्रॉम लोअर इनकम टू मिडिल इनकम टू हायर इनकम पे पहुंचे हैं, मेनली उन्होंने दो चीज़ें की हैं। एक, क्वालिटी एजुकेशन, जिस पे भी इंडिया को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंड है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। उस पार्ट पे भी इंडिया को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज कम है। इसका मतलब उनको अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनके स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हमारी एजुकेशन क्वालिटी बढ़ाने की भी ज़रूरत है। हम जो अपनी फार्मिंग टेक्निक्स है, जो वाटर यूसेज की टेक्निक्स है, जो भी हम उसमें इनपुट्स देते हैं, अगर हम उनको इफेक्टिवली यूज़ करेंगे, इन्फ्लेशन को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है, रादर देन पुटिंग ओनली। ये तो एक शॉर्ट टर्म मेजर है, मॉनेटरी पॉलिसी की इंटरवेंशन है। मॉनेटरी पॉलिसी की इंटरवेंशन होती है शॉर्ट टर्म की, भाई मैं मनी सप्लाई मैनेज कर लूँ ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए, मैं मार्केट से पैसा खींच लूँ। अभी तो ये कर रही है आरबीआई की पैसा खींच लेंगे, अपने आप पैसा कम होगा तो अपने आप रेट डाउन आ जाएंगे। पर लॉन्ग टर्म तो ये है कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, देश की लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, फूड की कल्टीवेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, कंपेयर करो, बेंचमार्क करो। उसमें हम अभी पीछे हैं, हमें उसमें, इंडिया बड़ा फॉर्चुनेट है, हमारे पास दुनिया का सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड है, सबसे ज़्यादा खेती की जगह हमारे पास है, पर हमारी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है। हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, और वो भी सस्टेनेबल मैनर में। हम अपने और कौन कौन से लैंड्स हैं जैसे अब चाइना काफ़ी अपने डेजर्ट्स को फार्म लैंड्स में कन्वर्ट कर रहा है, ग्रीन लैंड्स में कन्वर्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें, फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी चाइना के मुकाबले हमारी बहुत कम है। हम मैन्युफैक्चरिंग में आए नहीं हैं, देयर इज़ अ लर्निंग कर्व, पर अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अभी खैर लास्ट बजट में बात भी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में कि भाई करिकुलम और चीज़ों को गवर्नमेंट ने ध्यान तो दिया है, पर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के इन्फ्लेशन को अपने आप अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म बेटर मैनेज कर सकते हैं। और अगर आत्मनिर्भर बनेंगे, आज ये पॉलिसी क्यों अचानक लेनी पड़ी, क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं है अभी पूरी तरह से। हम इतने दशकों से वी वर रिलाइंग ऑन दोज काइंड ऑफ सप्लाई चेन्स। हमें अपनी एनर्जी नीड में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो देन अल्टीमेटली इट विल कंट्रोल
इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म कंट्रोल तो वही है, बेटर तरीका तो वही है चीज़ों को कंट्रोल करने का, बट जब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये इकॉनमी है, वॉलेटाइल होती है, फॉरेन की जो भी चीज़ें आप पे इम्पैक्ट डालती हैं, तो इसलिए आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है। सर इसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है अकोमोडेटिव स्टांस, इसके क्या मायने हैं पॉलिसी रेट मेकिंग में? अकोमोडेटिव स्टांस, अगर मैं इसको लिटरली इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, कि स्टांस होता है आपकी पोजीशन, अकोमोडेटिव कि हम सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अकोमोडेट कर रहे हैं। आउट ऑफ द साइकिल उन्होंने चेंज किया है। मैं इट्स अ सिंपल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी कि भाई आज सिचुएशन ऐसी है, ग्लोबल इनपुट्स के कारण, ग्लोबल वॉलेटिलिटी के कारण इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांस है, उसको अकोमोडेट करने के लिए। हाँ, अब इसका नुकसान क्या हो सकता है, अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो लोग जिन्होंने लोन लेके इन्वेस्टमेंट करनी थी वो रुक सकते हैं, तो उनको हमारी जो ग्रोथ है उसको भी हैंडल करना है। तो इस पे वो अभी अकोमोडेटिव स्टांस ले रहे हैं कि ये हम इसको शायद क्वार्टर एंड पे वापस भी कर सकते हैं। ठीक है कि अभी हमें इन्फ्लेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट लग रहा है, उसको कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बट कल को अगर लेट से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, राइट, लोग एफडी में पैसा ज्यादा डालें, इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो बिजनेसमैन को भी ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट अपनी रोक सकता है। उस चीज को भी देखना पड़ेगा, अगर इन्वेस्टमेंट रुक गई तो ग्रोथ रुक सकती है। तो इस एक ये फाइन बैलेंस बनाना ही तो आरबीआई और हमारे इकोनॉमिस्ट का काम है जी। तो अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब सिंपल सा ये है कि लुकिंग इनटू द करंट सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन चल रही है जिसमें इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, हम ये स्टांस, सडन स्टांस ले रहे हैं टू अकोमोडेट इन्फ्लेशन। जी सर, थैंक यू so much for your views, sir. So stay connected for such valuable inputs and deep insights. Do not forget to subscribe to our channel and download our app. Thank you.